اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فریز اور اس کے اقسام پر مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ریڈ دا سینٹینسز۔ آفٹر اے لانگ جرنی دے فائنلی ریچڈ دا ویلیج۔ لمبی سفر کے بعد وہ آخر کار گاؤں پہنچ گئے۔ شی واز سٹنگ beside the fireplace enjoying her book۔ وہ آگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اپنی کتاب کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ان سینٹینسز میں فریزز معلوم کر لیجئے۔ فرسٹ سینٹینس، آفٹر اے لانگ جرنی دے فائنلی ریچڈ دا ویلیج میں آفٹر اے لانگ جرنی فریز ہے۔ یہ فریز الفاظ آفٹر لانگ آور جرنی پر مشتمل ہے۔ یہاں آفٹر پریپوزیشن لانگ ایڈجیکٹیو اور جرنی ناؤن ہے۔ اس فریز میں نہ سبجیکٹ اور نہ ہی ورب ہے۔ دوسرے سینٹینس میں بھی فریز بائی سیٹنگ دا فائر میں بھی نہ کوئی سبجیکٹ ہے اور نہ کوئی ورب۔ سو a phrase is a group of words having no verb and its subject۔ فریز الفاظ کا وہ گروپ ہوتا ہے جس میں کوئی ورب اور اس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ فریز کو ایز اے سنگل پارٹ آف اسپیچ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائپس آف فریزز۔ اس لیکچر میں فریزز کے 5 اقسام پر تفصیل سے ڈسکشن کی گئی ہے۔ فریزز کے 5 اقسام درج ذیل ہے۔ پریپوزیشنل فریزز، پارٹیسپیل فریزز، جیرنڈ فریزز، انفینیٹیو فریزز اور افازیٹیو فریزز۔ Prepositional phrase۔ A prepositional phrase is a group of words beginning with a preposition and usually ending with a noun or pronoun۔ Prepositional phrase لفظوں کا وہ گروپ ہوتا ہے جو ایک preposition سے شروع ہوتا ہے اور عام طور پر ایک noun یا pronoun پر ختم ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے درج ذیل phrases پڑھیے۔ Examples for fag and you۔ fag اور تمہارے لیے۔ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پریپوزیشنل فریز ہے۔ کیسے؟ یہ پریپوزیشن فار سے شروع ہوا ہے اور پروناؤن یو پر ختم ہوا ہے۔ ان دا کلاس روم، کلاس روم میں، یہ بھی ایک پریپوزیشنل فریز ہے۔ یہ بھی پریپوزیشن ان سے شروع ہوا ہے اور ناؤن کلاس روم پر ختم ہوا ہے۔ نیچے دیے گئے باقی 2 فریزز آفٹر دا ایگزام اور ٹو بیڈ بھی پریپوزیشنل فریزز ہے۔ پچھلے فریزز کی طرح یہ دونوں فریزز بھی پریپوزیشن سے شروع ہوئے ہیں اور ناؤن پر ختم ہوئے ہیں۔ آفٹر دا ایگزام، امتحان کے بعد۔ ٹو بیڈ، بیٹ فر، آبجیکٹ آف پریپوزیشن، دا ناؤن اور پروناؤن دیٹ کنکلوڈس دا پریپوزیشنل فریز از کالڈ آبجیکٹ آف دا پریپوزیشن۔ ناؤن یا پروناؤن جو پریپوزیشنل فریز کو ختم کرتا ہے اسے پریپوزیشن کا آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ ایگزامپلس آن دا اسٹیپس، اسٹیپ فر، یہاں دا اسٹیپس پریپوزیشن آن کا آبجیکٹ ہے۔ فرام ہیزل اینڈ می، ہیزل اور مجھ سے، یہاں ایزل، ہیزل اور می پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہے۔ ود اے گرین، مسکراہٹ کے ساتھ، یہاں گرین پریپوزیشن ود کا آبجیکٹ ہے۔ کنکلوژن، پریپوزیشنل فریز پریپوزیشن اور ناؤن یا پروناؤن یعنی اس پریپوزیشن کے آبجیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ پریپوزیشنل فریزز عام طور پر موڈیفائرز کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ایڈجیکٹیو فریز یا ایڈورب فریز۔ سمجھنے کے لیے درج ذیل سینٹینس پڑھیے۔ احمد فلیز کرکٹ ان پارک۔ اس سینٹینس میں ان پارک ایک پریپوزیشنل فریز ہے۔ یہ یہاں ورب پلیس کی وضاحت کر رہا ہے، لہذا یہ یہاں بطور ایڈورب فریز کام کر رہا ہے۔ یہ یہاں ہمیں جگہ بتا رہا ہے، لہذا یہ یہاں بطور ایڈورب فریز آف پلیس کام کر رہا ہے۔ The book on the table is mine۔ یہاں پریپوزیشنل فریز on the table بطور ایڈجیکٹیو فریز یوز ہوا ہے۔ یہ یہاں
किताब की वजाहत कर रहा है, यानी कौन सी किताब मैं इस पर पढ़ी है। प्रीपोजिशन एज अ नाउन फ्रेज, कभी कभार प्रीपोजिशनल फ्रेज को नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, आफ्टर द डिनर विल बी टू लेट, रात का खाना खाने के बाद बहुत देर हो जाएगी। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज आफ्टर डिनर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव फ्रेज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। एग्जाम्पल, टक्सन हैज़ बीन द लोकल ऑफ मैनी वेस्टर्न्स, टक्सन बहुत से वेस्टर्न्स का मुकाम रहा है। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ मैनी वेस्टर्न्स एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये यहाँ लोकल की वजाहत कर रहा है। टूरिस्ट फ्रॉम द ईस्ट विजिट द ओल्ड फ्रंटियर टाउन्स इन द वेस्ट, ईस्ट से आने वाले टूरिस्ट वेस्ट के पुराने सरहदी शहरों का दौरा करते हैं। यहाँ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रॉम द ईस्ट बतौर एडजेक्टिव फ्रेज काम कर रहा है, यहाँ ये टूरिस्ट की वजाहत कर रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एज एन एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। नीचे दिए गए सेंटेंसेस ये तरीके दिखाते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बतौर एडवर्ब फ्रेज किस तरह से वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। शी प्रैक्टिसेस विद डिलिजेंस, वो मेहनत से मशक करती है। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज विद डिलिजेंस बतौर एडवर्ब फ्रेज काम कर रहा है। ये यहाँ प्रैक्टिसेस जो कि वर्ब है की वजाहत कर रहा है। ये यहाँ बतौर एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर यूज हुआ है। ये यहाँ कैसे का जवाब दे रहा है। शी प्रैक्टिसेस बिफोर अ कंसर्ट टूर, वो कंसर्ट टूर से पहले मशक करती है। यहाँ बिफोर कंसर्ट बतौर एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम यूज हुआ है। शी प्रैक्टिसेस इन हर स्टूडियो, वो अपने स्टूडियो में मशक करती है। यहाँ इन हर स्टूडियो बतौर एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस यूज हुआ है। शी प्रैक्टिसेस फॉर वीक्स, वो हफ्तों तक मशक करती है। यहाँ फॉर वीक्स बतौर एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री यूज हुआ है। शी प्रैक्टिसेस फॉर हर ओन गुड, वो अपने फ़ायदे के लिए मशक करती है। यहाँ पर हर ओन गुड जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है बतौर एडवर्ब फ्रेज ऑफ पर्पस यूज हुआ है। ही थ्रू द बॉल फार टू द ईस्ट, उसने बाल दूर मशरक की तरफ फेंकी। यहाँ टू द ईस्ट जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है बतौर एडवर्ब फ्रेज ऑफ डायरेक्शन यूज हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीपोजिशन और एडवर्ब वाली वैल्यूज नहीं देखी है तो उन्हें देख ले, इसको समझने में आसानी होगी। फ्रेजेस कंटेनिंग वर्बल्स, वर्बल फ्रेजेस पर मुश्तमिल सेंटेंसेस प्रीपोजिशनल फ्रेज से कम आम लेकिन लिखने वाले के लिए बहुत मुफीद होती है। वर्बल फ्रेजेस में पार्टिसिपियल फ्रेज, जीरंड फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेजेस शामिल है। उन्हें वर्बल फ्रेजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सबसे अहम लफ्ज़ वर्बल होता है। मज़ीद इन्हें वर्बल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब से बने होते हैं। कुछ लिहाजों में ये वर्ब्स की तरह काम करते हैं। ये कोई अमल ज़ाहिर कर सकते हैं, इनके साथ मॉडिफायर्स हो सकते हैं और इनके बाद कॉम्प्लीमेंट्स भी आ सकते हैं, मगर एक अहम पहलू में ये वर्ब्स की तरह नहीं होते। वर्बल्स किसी जुमले में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, ये किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। इससे पहले कि आप वर्बल फ्रेजेस को समझ सके, आपको पहले उन वर्बल्स को समझना होगा जिन पर ये फ्रेजेस मबनी है। अगली स्लाइड्स पर आपको हर किस्म के वर्बल्स की वजाहत मिलेगी और उसके बाद उनका एक जायज़ा मिलेगा जिसमें उन्हें ज़्यादातर फ्रेज के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। द पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपियल फ्रेजेस,
participle or participial phrase. A participial is a verb form that is used as an adjective. Participle एक verb की शक्ल होती है जो कि adjective के तौर पर इस्तेमाल होती है. समझने के लिए दर्ज झेल sentences पढ़िए. Examples: The rapidly developing storm kept small boats in port. तेजी से बढ़ता हुआ तूफान ने छोटी किश्तियों को बंदरगाह में रोका. Developing rapidly, the storm kept small boats in port. तेजी से बढ़ता हुआ तूफान ने छोटी किश्तियों को बंदरगाह में रोका. The storm developing rapidly kept small boats in port. तूफान जो कि तेजी से बढ़ रहा था ने छोटी किश्तियों को बंदरगाह में रोका. इन सेंटेंसेस में developing जो कि verb develop से बना है एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. यहाँ ये नाउन स्टॉर्म को मॉडिफाई कर रहा है. काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल दो किस्म के होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल. A present participle like those in the preceding examples ends in ing. Present participle जैसे कि पहले दिए गए मिसालों में है ing पर ख़त्म होता है. समझने के लिए sentences पढ़िए. Examples: They saw their children sleeping. उन्होंने अपने बच्चों को सोता हुआ देखा. यहाँ sleeping present participle है. ये ing पर ख़त्म हो रहा है. The moving car gathered speed rapidly. चलती हुई गाड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ गई. यहाँ moving present participle है और ये यहाँ कार की वजाहत कर रहा है. Past participle. A past participle may end in ed, d, t, en or n, such as asked, saved, dealt, eaten, seen. Past participle अक्सर ed, d, t, en या n पर ख़त्म होता है जैसा कि asked, saved, dealt, eaten, seen. समझने के लिए sentences पढ़िए. Example: The children awakened began to stir. बच्चे जो कि जाग गए थे हरकत में आना शुरू हुए. पार्टिसिपल वर्ब से बने होते हैं लेकिन ये अकेले वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं. ताहम एक पार्टिसिपल को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाकर वर्ब फ्रेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. समझने के लिए सेंटेंस पढ़िए. द कार वॉज मूविंग रैपिडली. गाड़ी तेजी से चल रही थी. यहाँ वॉज मूविंग एक वर्ब फ्रेज है जो हेल्पिंग वर्ब वॉज और प्रेजेंट पार्टिसिपल मूविंग से मिलकर बना है. जब पार्टिसिपल को वर्ब फ्रेजेस में इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें वर्ब का हिस्सा समझा जाता है और वो एडजेक्टिव नहीं माने जाते. पार्टिसिपियल फ्रेज. A participial phrase is a phrase containing a participle and any complements or modifiers it may have. Participial phrase एक ऐसी phrase होती है जो एक participle और उससे मुताल्लिक तमाम complements या modifiers पर मुश्तमिल होती है. समझने के लिए sentences पढ़िए. Removing his coat, the Jack rushed to the bank. अपना कोट उतारते हुए जैक बैंक की तरफ दौड़ा. Participial phrase removing name के पार्टिसिपल और कोड के तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल है जो कि रिमूविंग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट वर्ब्स की तरह पार्टिसिपल भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. समझने के लिए सेंटेंस पढ़िए. हेजिटेटिंग देयर फॉर अ मोमेंट ही क्विकली ग्रास्प्ड द सिचुएशन. एक लम्हा वहां रुककर झिझकते हुए उसने फौरन सूरत हाल समझ ली. पार्टिसिपल फ्रेज हेजिटेटिंग और उसके मॉडिफायर्स देयर और फॉर मोमेंट पर मुश्तमिल है. यहाँ देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फॉर अ मोमेंट एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है. स्टार्ट. पार्टिसिपल अक्सर फ्रेज के आगाज करता है और पूरी फ्रेज एक एडजेक्टिव के तौर पर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है. समझने के लिए सेंटेंस पढ़िए. इरफान प्लेइंग विद स्किल won the match. इरफान मेहनत से खेलता हुआ मैच जीत गया. यहाँ प्लेइंग विद स्किल प्लेइंग पार्टिसिपल से शुरू हुआ है. गेटिंग अप एट 5 वी गेट एन अर्ली स्टार्ट. 5 बजे उठकर हम जल्दी शुरुआत करते हैं. यहाँ भी गेटिंग
up at fire getting سے شروع ہوا ہے جو participle ہے. Destroyed by fire, the church was never repelled. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. A gerund is a verb form ending in ing that is used as a noun. gerund ایک verb کی شکل ہے جو ing پر ختم ہوتی ہے اور noun کے طور پر استعمال ہوتی ہے. سمجھنے کے لیے sentences پڑھیے. Traveling is fun. سفر کرنا مزیدار ہے. یہاں traveling travel سے بنا ہے. اور sentence کے subject کے طور پر noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے. gerund ایک زبانی noun ہے. یہ کسی بھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح ایک noun استعمال ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے sentences پڑھیے. Good writing comes from much practice. اچھی لکھائی بہت مشق سے آتی ہے. یہاں gerund کو noun کے طور پر subject کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. They do not appreciate my singing. وہ میرے گانے کی صلاحیت کو پسند نہیں کرتے. یہاں gerund verb کا object کے طور پر استعمال ہوا ہے. By studying you can pass the exam. پڑھنے کے ذریعے تم امتحان پاس کر سکتے ہو. یہاں gerund preposition کا object کے طور پر استعمال ہوا ہے. gerund phrase. A gerund phrase is a phrase consisting of a gerund and any complements or modifiers it may have. gerund phrase ایک ایسی phrase ہوتی ہے جو gerund اور اس کے تمام complements یا modifiers پر مشتمل ہوتی ہے. سمجھنے کے لیے sentence پڑھیے. Examples. Finding a needle in a haystack is a traditional example of impossible. بس کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنا ناممکن کا ایک روایتی مثال ہے. یہاں gerund finding کا object needle ہے اور یہ adverb phrase in a haystack سے modify ہو رہا ہے. gerund کی طرح gerund phrase بھی ان جگہوں پر استعمال ہو سکتا ہے جہاں ایک noun کا استعمال ہوتا ہے. Infinitive phrase. An infinitive is a verb form usually preceded by to that is used as a noun or a modifier. Infinitive ایک verb کی شکل ہے جس سے پہلے اکثر to لگتا ہے اور یہ noun یا modifier جیسا کہ adjective یا adverb کے طور پر استعمال ہوتا ہے. Examples. To go, to speak, to believe, to be. Infinitive عام طور پر noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن یہ adjective یا adverb کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. سمجھنے کے لیے sentences پڑھیے. To wait for the bus is tiresome. بس کا انتظار کرنا تھکا دینے والا ہے. یہاں to wait infinitive ہے. یہ یہاں بطور subject یوز ہوا ہے. Everyone wanted to go. ہر کوئی جانا چاہتا تھا. یہاں infinitive کو verb کے object کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. Her ambition is to fly. اس کا مقصد اڑنا ہے. یہاں infinitive sentence کے complement کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. We lacked the strength to resist. ہم میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی. یہاں infinitive بطور adjective یوز ہوا ہے. یہ یہاں strength کو modify کرتا ہے. We study to learn. ہم سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہاں infinitive بطور adverb یوز ہوا ہے. یہ یہاں verb کی وضاحت کرتا ہے. infinitive جس میں to شامل ہوتا ہے کو to سے شروع ہونے والے prepositional phrase سے غلط مت سمجھنا. سمجھنے کے لیے examples پڑھیے. To fly, to her. یہاں to fly infinitive
जबकि टू हर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टू ड्रा टू स्कूल, टू ड्रा का मतलब है ड्रा करना और टू स्कूल का मतलब है स्कूल के लिए। यहाँ भी टू ड्रा इन्फिनिटिव और टू स्कूल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टू जो इन्फिनिटिव की निशानी है कभी छोड़ दिया जाता है। शी मैड मी लीव, यहाँ पर टू को छोड़ दिया गया है। उसने मुझे छोड़ने पर मजबूर किया, यहाँ टू को छोड़ दिया गया है। हेल्प मी डू माई वर्क, मेरे होमवर्क करने में मेरी मदद करो, यहाँ भी टू को छोड़ दिया गया है। Infinitive phrase. An infinitive phrase consists of an infinitive and any complements or modifiers it may have. Infinitive phrase एक infinitive और उसके साथ किसी भी complement या modifier से मिलकर बनता है। समझने के लिए सेंटेंस पढ़िए। We intend to leave early, हम जल्दी छोड़ने का इरादा रखते हैं। यहाँ early एक एडवर्ब है जो इन्फिनिटिव टू लीव को मॉडिफाई करता है, यानी यहाँ इन्फिनिटिव के बाद अर्ली लगा हुआ है और अर्ली एक एडवर्ब है और ये टू लीव को मॉडिफाई कर रहा है। आई हैव अ पेपर टू राइट बिफोर क्लास, मेरे पास क्लास से पहले लिखने के लिए एक पेपर है। यहाँ बिफोर क्लास टू राइट को मॉडिफाई करता है। नो वन वांट्स टू हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद करना नहीं चाहता। यहाँ अस टू हेल्प का ऑब्जेक्ट है। वी ट्राई टू रीजन विद हर, हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की। यहाँ इन्फिनिटिव फ्रेज टू रीजन वर्ब ट्राइड का ऑब्जेक्ट है। टू सेव मनी बिकेम हर ऑब्सेशन, पैसे बचाना उसका ऑब्सेशन बन गया। यहाँ टू सेव मनी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। There must be a way to solve this problem. इस मसले को हल करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। यहाँ इन्फिनिटिव फ्रेज वे नाउन को मॉडिफाई करता है, लिहाजा ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। I am too busy to go to the movies tonight. मैं आज रात मूवीज जाने के लिए बहुत मसरूफ हूँ। यहाँ इन्फिनिटिव फ्रेज बिजी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, लिहाजा ये यहाँ बतौर एडवर्ब फ्रेज के काम कर रहा है। His plan is to go to college for 2 years. उसका मंशा 2 साल तक कॉलेज जाना है। यहाँ इन्फिनिटिव फ्रेज सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है जो his plan की तरफ इशारा करता है। I asked her to help me, मैंने उससे मेरी मदद करने को कहा। यहाँ her इन्फिनिटिव टू कॉम्प्लीमेंट टू हेल्प कॉम्प्लीमेंट समझा जाता है। I believe it to be John, मैं यकीन करता हूँ कि ये जॉन होना चाहिए। It इन्फिनिटिव टू बी जॉन का सब्जेक्ट है। A positive and a positive is a noun or pronoun, often with modifiers, set beside another noun or pronoun to explain or identify it. A positive एक noun या pronoun होता है जो अक्सर modifiers के साथ होता है और किसी दूसरे noun या pronoun के बाद लगाया जाता है और उसे समझने या पहचानने के लिए लगाया जाता है। समझने के लिए सेंटेंसेस पढ़िए। योर फ्रेंड टीना इज इन टाउन, तुम्हारी दोस्त टीना शहर में है। यहाँ टीना ए पॉजिटिव है और ये फ्रेंड के लिए यूज़ हुआ है और फ्रेंड की वजाहत कर रहा है। द डेली न्यूज़ द डॉन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन द सिटी, डेली न्यूज़ द डॉन शहर में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन रखता है। यहाँ द डॉन ए पॉजिटिव है।
Appositive phrase. An appositive phrase is a phrase consisting of an appositive and its modifiers. Appositive phrase एक ऐसी phrase है जो appositive और उसके modifier से मिलकर बनता है. समझने के लिए sentences पढ़िए. My brother's car's a sporty red convertible with bucket seats is the envy of my friends. मेरे भाई की कार एक स्पोर्टी लाल कन्वर्टिबल जो बकेट सीट्स के साथ है मेरे दोस्तों के लिए रश्क की बात है. यहाँ a sporty red convertible with bucket seats a positive phrase है. A positive जुमला आमतौर पर उस लफ्ज़ के बाद आती है जिसे वो समझाती है या पहचानती है, लेकिन कभी कभार पहले भी आ सकती है. एग्जाम्पल, A beautiful collie Skep was my favorite dog. एक खूबसूरत कोली स्केप मेरी पसंदीदा कुत्ता था. यहाँ A beautiful collie appositive है और ये यहाँ नाउन स्केप से पहले लगा हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.